السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے نیو اردو سٹوری، تو جلدی سے پڑھیں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کامنٹ میں کیجیے گا۔ شکریہ۔ یا اللہ، آج بچا لیں، پھر کبھی فیل نہیں ہوں گی۔ وہ دعا کرتی ہے حاجی خانزادہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ اٹھایا تاکہ کالج کی طرف سے آئی شکایتیں میل ڈیلیٹ کر سکے۔ جلدی جلدی میل ڈیلیٹ کرنے کے بعد وہ جیسے ہی پلٹی، حاجی خانزادہ کو گیرا بدن لیے بغیر شرٹ کے اپنے سر پر کھڑا دیکھ زرمینے کا سانس حلق میں اٹکا تھا۔ وہ حاجی خانزادہ سے 10 سال چھوٹی اس کے نکاح میں تھی۔ وہ پورے گھر کی لاڈلی تھی، لیکن سوائے اس شخص کے جو اس کے لیے ہمیشہ ظالمی ثابت ہوا تھا۔ وہ منہ میں زرمینہ خوف سے کانپتی پیچھے ہوئی تو حاجق نے اسے کمر سے تھام اپنے قریب کیا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ حاجق کا سر لہجہ زرمینے کی جان نکال گیا تھا۔ اس کے جسم پر ننھی پانی کی بوندیں موجود تھی، بال اور پلکیں بھی نم تھی۔ زرمینے اس کے سینے سے چپکی تو نمی کا احساس ہوا۔ چھوڑے مجھے، اتنا نہیں پتا آپ کو کہ نہانے کے بعد تولیہ استعمال کرتے ہیں؟ ویسے تو بڑے مینرز والے بنتے ہیں۔ بند کمرے میں مینرز گئے بھاڑ میں، سارا میٹرس گیلا کر دیا۔ زرمینے نے آنکھیں گھمائے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی بات سن حاجق خانزادہ کا مزید بڑھائی ہو گیا۔ تم میں بڑے مینرز ہیں؟ خاموشی سے اپنے شوہر کے کمرے میں داخل ہوئی، اس کا لیپ ٹاپ کھولا اور اپنا رزلٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن زرمینے بی بی، افسوس کی بات ہے کہ وہ میل میں دیکھ چکا ہوں، کیونکہ لیپ ٹاپ میں جو آئی ڈی لاگ ان ہے وہ میرے فون میں بھی آن ہے۔ اب میری بات سنو، تم نے پڑھائی کی رٹ لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تمہاری رخصتی نہیں ہو رہی تھی، لیکن تم تو پڑھی بھی نہیں رہی، فیل ہو گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بچنے کے لیے پڑھائی کا بہانہ دیتی ہو، تمہیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کالج بھی بس ٹائم پاس کرنے جاتی ہو، اس لیے تیار ہو جاؤ رخصتی کے لیے۔ وہ اس کے کان کے قریب لگ کیے سختی سے کہتا، اس کے کان سوکھ کر دیا۔ زرمینہ ساکت کھڑی رہی۔ اس لمبے چوڑے مٹ کے سامنے وہ چھوٹی سی تھی۔ میں جاتی ہوں۔ وہ تھوک نگلتی اس سے دور ہوتی باہر کی طرف جانے لگی جب حاجق خانزادہ نے اس کی کلائی تھام کر اسے روکا۔ اس کے قدم وہیں ساکت رہ گئے۔ خوف سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ جانتی تھی وہ اب کیا کرنے والا ہے؟ حاجق خانزادہ نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ واپس اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ ابھی جو حرکت کی ہے تم نے، اس کی سزا دیے بغیر کیسے جانے دے سکتا ہوں تمہیں؟ بیگم صاحبہ، حاجق نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اٹھایا اور بوری کی طرح اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ زرمینہ اس سے منتیں کرنے لگی مگر اس نے ایک نہ سنی۔ وہ اسے اٹھا کر واش روم میں لایا اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ بہت زبان چل رہی تھی نا تمہاری؟ کیا کہہ رہی تھی مجھے؟ میں مینرز نہیں ہے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میرے مینرز صرف کمرے سے باہر ہوتے ہیں، کمرے میں آ کے میں باہر میں بھیج دیتا ہوں، اس لیے دیکھو اب میرے بیڈ مینرز۔ حاجق نے اس کا دوپٹہ گردن سے کھینچ کر جدا کیا اور شاور کھول دیا۔ پانی کی تیز دھار اس کے چہرے پر پڑی تو وہ بری طرح پگھل گئی۔ تو پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کی چھوٹی سی بیوی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، زرمینے نے منت کرتے ہوئے کہا۔ شاور کے نیچے کھڑے وہ دونوں بھیگ گئے تھے۔ زرمینے کے کندھے تک آتے شارٹ کٹ بال بھی بھیگ گئے تھے، اس کے کپڑے گیلے ہو کے جسم سے چپک گئے۔ اس کا یہ روپ دیکھ حاجق خانزادہ پر خمار چڑھنے لگا۔ اس نے زرمینے کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خوف سے لگایا، خود سے لگایا۔ تمہیں پتہ ہے زرمینے، مجھے تمہاری چلتی زبان بہت بری لگتی ہے، دل کرتا ہے کاٹ دوں، حاجق خانزادہ نے دانت جماتے ہوئے کہا تو زرمینے سہم کر اس کے سینے میں ہی سمٹنے لگی۔ حاجق نے محسوس کیا کہ اسے سردی لگ رہی ہے تو آگے بڑھ کر شاور بند کر دیا۔ ویسے ہی سردی کا موسم تھا۔ اتنی بری لگتی ہے میری زبان تو نکاح کیوں کیا مجھ سے؟ اب ایسے لوگ بھی موجود ہیں جیسے زرمینے کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان سے عشق ہے۔ وہ تھوڑا نرم پڑا تو وہ بے وقوف لڑکی پھر سے شروع ہو گئی۔ اس کی بات سن حاجق نے کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنے سخت ہاتھوں میں اس کا منہ دبوچ لیا۔ کیا کہا؟ کس سے عشق ہے؟ کون ہے وہ عاشق جس کی اتنی ہمت ہوئی کہ وہ حاجق کی منقوہہ سے عشق کرے؟ حاجق خانزادہ کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ کوئی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی بول رہی تھی۔ زرمینے نے معصوم بندے کندھے اچکائے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، اب تمہیں اس کی بھی سزا ملے گی، حاجق خانزادہ غصے سے کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کر واش روم سے باہر نکلا اور اسے گیلے کپڑوں سمیت بیڈ پر گرا دیا۔ خود بھی گھٹا کی طرح اس پر چھانے لگا۔ جب زرمینے نے تکیے اٹھا کے اس کے منہ پر مارنا شروع کر دیا، وہ غصے سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ خبردار جو کچھ کیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، میں چلا چلا کے پورے گھر کو جمع کر لوں گی اور آپ رسوا ہو جائیں گے، زرمینے نے انگلی دکھاتے کہا۔ اچھا، میرے کمرے میں تم موجود ہو اور رسوا میں ہو جاؤں گا؟ حاجق خانزادہ نے اس کی عقل کو داد دی۔ میں سب کو یہ کہہ دوں گی کہ آپ نے مجھے زبردستی یہاں بلایا، زرمینے نے فوراً اپنا دماغ چلایا۔ جاؤ کہہ دو، میں کسی سے نہیں ڈرتا، بیوی ہو تم میری، وہ کندھے اچھا کے بولا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ بہت بڑے ہیرو ہیں، زہر لگتے ہیں آپ مجھے یہ روب جماتے ہوئے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے ڈرایا اور میں ڈرتی رہی، لیکن اب نہیں ڈروں گی حاجق خانزادہ، اب میں آپ کا کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گی، زرمینے غصے سے چلائی۔ اپنی آواز نیچے رکھو ورنہ ہمیشہ کے لیے بند کروں گا تمہاری آواز۔ حاجق خراتا ہوا آگے بڑھا اور اس کا منہ دبوچ لیا۔
नहीं करूँगी, क्या करेंगे, जान से मारेंगे, मार दें। वो डट कर उसके सामने बैठ गई। ज़मीने, तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा। हाजिक का चेहरा सपाट था। नहीं, मैं तो नहीं जा रही, बीवी हूँ मैं आपकी, क्या करेंगे करेंगे। ज़मीने बेखौफ होती बोली। हाजिक ने साइड टेबल पर रखे कांच के गिलास पर गौसे से हाथ मारा, गिलास नीचे गिरा और कुर्सियों में बिखर गया। ज़मीने का खौफ वापस उमट आया। वो तेजी से उठी और हाजिक के कमरे से निकल गई। वो सो के उठी तो नथनों से खुशबू टकराई। वो जल्दी से कमरे से निकली तो देखा हॉल में मिठाइयों के डब्बे रखे थे। सामने वो 3 पीस पहने, टांग पर टांग जमाए शाही सोफे पर बजुमान था। उसके लबों पर मखसूस मुस्कुराहट थी जो ज़मीने को देखकर मजीद गहरी हो गई थी। ये मिठाइयाँ कैसी? उसने दूसरे सोफे पर बैठी अपनी दादी को मुखातिब किया। तुम्हारे फेल होने की खुशी में, वो मुस्कुराते हुए बोला। ज़मीने के लब सिकुड़ गए। यानी वो सबको उसके फेल होने का बता चुका था? हाँ तो हो गई फेल, हजारों लाखों बच्चे होते हैं, तो इसमें मिठाई मंगवाने की क्या ज़रूरत? वो कंधे उचका के बेनियाजी से बोली। नहीं मोहतरम, हम इतने बेगैरत नहीं हैं कि किसी की नालायक की कामयाबी पर मिठाइयाँ बांटे। ये तो तुम्हारी रुखसती की खुशी में है। आज तुम रुखसत होकर मेरे पास आ रही हो ना। बड़े आराम से कहता उसके सर पर बम फोड़ गया। ज़मीने एक कदम सटपटा गई। सर पर आसमान आके गिर गया। क्या रुखसती? इतनी जल्दी नहीं दादी, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मैंने शॉपिंग भी नहीं की और आपका ये पोता, ये तो मुझे कुछ दिलाएगा भी नहीं। वो एहतजाज करने लगी जब हाजिर खानज़ादा उठा और उसके करीब आया। कल रात तुम्हें जो चाहिए था वो आज रात तुम्हें मिल जाएगा। उसके कान में सरगोशी करता तंजिया मुस्कुरा के उसके बराबर से होता हुआ निकल गया। ज़मीने समझ गई वो क्या कह रहा था। वो कल रात वाली बात का बदला लेने वाला था। वो किसी को ऐसे नहीं छोड़ता था। दादी प्लीज़ मुझे इतनी जल्दी रुखसत ना करें, मैं क्या बोझ बन गई हूँ आप लोगों पर? ऐसी बात है तो बता दे, मैं खुद कमा लूंगी। वो दादी के बराबर में बैठी रोनी सूरत बना के बोली। परे हट लड़की, तुझसे कौन सा हमारी जान छूट जाएगी? एक कमरे से दूसरे कमरे तक ही जा रही है, ज़्यादा नाटक बाजियां ना कर। दादी ने उसकी गुद्दी पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। वो घूर कर रह गई। आंसू निकालने की कोशिश की मगर ये कमबख्त आंसू कौन से सही वक्त पर आते थे। ये तो बस जब आते हैं जब भूख लगी हो या पेपर नहीं आ रहा हो। बाकी तो वो ढीठ थी, रोती नहीं थी। दुल्हन बनी ज़मीने को हाजिर खानज़ादा के कमरे में ला के हुजला उरूसी में बिठा दिया गया। वो आंखें फाड़े एक गेट देख रही थी, कहीं हाजिर खानज़ादा ने उसे मारने के लिए कोई हथियार न रखा हो। उसने साइड टेबल की दराज खोली तो गन देखकर चौंक गई। सीने में सांस अटक सा गया था। उसने गन निकाली और अपने दामन के अंदर छुपा ली। कुछ देर बाद हाजिर खानज़ादा मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही ज़मीने की धड़कनें तेज हो गई। क्या क्या कह रही थी तुम? शोर मचाओगी? चलो अब शोर मचाओ, लेकिन अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए तुम्हें वो खुद मेरे कमरे में छोड़ कर गए हैं और सब जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा हो। उस मायने अंदाज में कहता उसके करीब आया और इसकी नाक से अपनी नाक टच करता है सजाई अंदाज में बोला। शोर नहीं मचा सकती लेकिन मार तो सकती हूँ ना। शर्मीले ने दामन के अंदर से गन निकाली और उसका रुख हासिल खानजादा की तरफ कर दिया। बड़ी जिदार लड़की हो तुम शर्मीले, वैसे इस घर की किस्मत भी कितनी अच्छी है, 2 ही बच्चे पैदा हुए और दोनों दलेर। हाजिर खानजादा फखर से बोला और शर्मीले ने नापसंदीदगी से उसे देखा। गलत, दोनों दलेर नहीं, एक दलेर और दूसरा भेड़िया। शर्मीले ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, भेड़िया, नाइस साउंड। तुम्हें पता है जब भेड़िया किसी इंसान को काटता है तो खून निकलता है? अब मैं तुम्हें काट कर देखूंगा, अगर खून निकला तो समझ जाऊंगा कि मैं भेड़िया हूँ। हाजिर खानजादा ने सुहाने अंदाज में कहते उसके सफ़ेद गर्दन को देखा। शर्मीन ने उसकी बेबाक नजरें देख झुरझुरी ली। हाजिर खानजादा आगे बढ़ा और उसकी गर्दन पर झुका। झुकने लगा जब शर्मीने ने उसके सीने पर गन रख दी। मारना चाहती हो मुझे? हाजिर ने पीछे होते हुए मुस्कुरा के पूछा। नहीं, मैं कत्ल करके जेल में जिंदगी नहीं काटना चाहती। अगर आप मुझे मजबूर ना करें तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। खामोशी से जाके सोफे पर सो जाएं। सरवीने ने उसे इशारा किया। वो उसकी बात से जैसे महफूज हुआ, फिर आगे बढ़ा, उसके हाथ से गन छीनने लगा और जब ही उसकी ट्रिगर पर रखी, सरमीने की उंगली दब गई। एक गोली हाजिर खानजादा के सीने पर आर पार हो गई। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि सरमीने गोली चला देगी। दूसरी तरफ सरमीने को खुद भी नहीं पता था कि बेध्यानी में गोली चल जाएगी। हाजिर खानजादा के पेट से खून बिलबिलाने लगा। वो पीछे की तरफ गिर गई जबकि गोली की आवाज़ सुनकर सारे घर में हलचल मच गई। सरमीने ने हैरत से खुद को देखा और फिर सामने बैठे हाजिर को। अगले पल वो बेहोश होकर बेड पर गिर गई। उसे लगा वो समंदर में डूब गई हो। जब ही उसने गहरी सांस ली और झटके से आंखें खोली तो सामने उसे खड़ा देखकर हैरान रह गई। वो जगह हाथ में लिया उस पर पानी उंडेल रहा था। सरमीने हड़बड़ा के उठी। फिर रात वाली कहानी याद आई तो नासमझी से उसे देखा। तुम तो कह रही थी तुम बड़ी दलेर हो, जरा सा खून देखकर बेहोश हो गई। हाजिर खानजादा शर्टलेस उसके सामने बैठ गया। सरमीने अभी तक सारी कहानी नहीं समझी थी। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देख हाजिर ने कहकहा लगाया। उफ, तुम तो बड़ी डरपोक हो। वो फिर से हंसने लगा। तुम बच कैसे गए? तुम्हें तो गोली लग गई थी ना? सरमीने खौफ से उसे देखते हुए बोली। नहीं, मुझे तो गोली नहीं लगी। हाजिर ने हाथ उठाया, उसे दिखाया। उसके जिस्म पर कोई चोट नहीं थी। नहीं, मैंने खुद देखा था, तुम्हारे पेट से खून निकला था। सरमीने कश्मकश का शिकार होते बोली। कहाँ से? यहाँ से? हाजिर ने अपने पेट पर हाथ रखे पूछा तो सरमीने ने इस्बात में सर हिला दिया। अच्छा देखो, शायद चोट नजर आ जाए। उसने सरमीने का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा। सरमीने ने घबरा कर हाथ खींचा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो झिल्ला कर बोली। मैं समझा देता हूँ। हाजिर उसके करीब आया।
इतना करीब कि उसकी सांसें जमीने के चेहरे को झुलसाने लगी। वो गन नकली थी और उसमें जो गोली निकली थी वो प्लास्टिक की थी, और मैंने शर्ट के नीचे यहाँ एक थैली रखी थी जिसमें रेड लिक्विड था, प्लास्टिक की गोली इसमें लगी तो थैली फट गई और लिक्विड निकल गया, जिसे तुम फोन समझ कर बेहोश हो गई थी। उसने दोबारा खहका लगाया। जमीने की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो इतना मास्टरमाइंड था, उसे एहसास नहीं था। तुम इतने घटिया हो गई, मैंने सोचा नहीं था, वो दांत पीस कर बोली। फिर किसी ख्याल के तहत सर उठाकर देखा। इस गन से तो बहुत जोर से आवाज आई थी, घर वालों को पता नहीं चला, उन्होंने कुछ नहीं पूछा? वो हैरत से पूछने लगी। आए थे सब भागे हुए, कहने लगे कैसी आवाज थी। मैंने कहा मैं अपनी शादी की खुशी में पटाखे फोड़ रहा हूँ। वो अब धीरे से मुस्कुरा रहा था। जमीने ने हमेशा उसे संजीदा देखा था, उसका ये अलग ही रूप था, कुछ शरारती, कुछ मजाकिया। झूठे? जमीने ने सर झटका। कहाँ से झूठा? मैंने सच ही तो बोला था, वो डिटाई से बोला। ये सच है कि तुम पटाखे फोड़ रहे थे? वो खुदाई। हाँ, तुम्हें फोड़ रहा था। तुम कौन सी पटाखे से कम हो? वो फौरन भोला बनकर बोला। बदतमीज आदमी, वो दांत पीस कर बोली। बदतमीज औरत? उसे खूब मजा आ रहा था। औरत हूँ मैं? अभी एक दिन रुखसती को हुआ है और मैं औरत लगने लगी? वो आंखें फाड़े बोली। औरत नहीं, तुम मतलब मर्द हो, वो हंसते हुए बोला। तुम ना अपना मुंह बंद रखो, वो गुस्से से बेड से उठने लगी। ये तुम क्या होता है? आप बोलो, 10 साल छोटी हो तुम मुझसे। घर में किसी की इतनी जुबान नहीं चलती जितनी तुम्हारी चलती है मेरे सामने। हाजिर खानजादा उसे टोकने लगा। सब में और जमीने में बहुत फर्क है मास्टर मिस्टर हाजिर। वो मुड़कर उसे जतलाकर बोली और कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो अभी वॉशरूम का दरवाजा बंद करती जब हाजिर खानजादा ने सदर से उठकर वॉशरूम के दरवाजे में टांग उड़ाए उसे बंद करने से रोका। जरमीनी की आंखें गुस्से से फैली। ये क्या हरकत है, पीछे हटो, वो हो रही जब हाजिर खानजादा दरवाजे को जोर से धकेल कर वॉशरूम में दाखिल हो गया। भूल गई कल क्या किया था मैंने तुम्हारे साथ? हाजिर खानजादा ने जरमीनी के हाथ से कपड़े लेकर हैंग किया और उसे लिए शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। जरमीनी ने ला कर एहतजाज किया, मगर वो उसको बेबस करके अपनी मनमानियां करने लगा। वो लंबे फ्रॉक पहने, कानों में डायमंड इयररिंग्स पहने कमरे से निकली तो पीछे वो भी सिया जीन्स शर्ट में मलबूस पहाड़ लपका। नाश्ते पर सब उनका इंतजार कर रहे थे। जरमीन ने हाजिर खानजादा को नजरअंदाज करके कुर्सी घसीट कर बैठ गई तो हाजिर भी उसके बराबर में आकर बैठ गया। कितना सोना जोड़ा है, माशाल्लाह, सब जोड़ी सलामत रखे अल्लाह ताला। अब जल्दी से खोद भर दे हमारी सरबीने की, दादी ने उसे देखते ही कहा। वो पूरी तरह उछल गई। दादी, अभी एक दिन हुआ है, अभी से आप शुरू हो गई? आपके कहने पर रुखसत ही कर लिया, बच्चा इतनी जल्दी नहीं कर सकती, वो दांत पीसते पीसते हुए बोली। दादी को घूरने लगी। तू तू कौन होती है ये फैसला करने वाली? दादी ने भी पलटकर उसे घूरा। फिक्र नहीं करें दादू, बहुत जल्द इस घर में किसी नन्हे बच्चे की कलकारियां गूंजेगी, वो उसको जलाने के लिए बोला। सरमीना ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। तुम दोनों हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? इन दोनों की लड़ाई ना हो इसलिए दादी ने बात तब्दील कर दी। मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना, सरमी ने बेदिली से टोस खाने लगी। हम पेरिस जा रहे हैं, इसे आईफेल टावर दिखाने का बहुत शौक है। मैं तो बहुत दफ़ा देख चुका हूँ, लेकिन इस बेचारी ने एक बार भी नहीं देखा, हाजिर दादी से कहने लगा जब बेचारी का लफ्ज़ सुनकर उसे झटके से सर उठाया। ए, बेचारी नहीं हूँ मैं, जितना इस चादर पर तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है, वो आंखें घुमाए इस महल नुमा घर को देखती बोली। ओके ओके, हाजिर खानजादा उसे जवाब देकर दादी की तरफ मुतवज्जा हुआ। जब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा मैं ऑनलाइन काम करूंगी, यहाँ पर डैड संभालेंगे, उसने दादी को मुतमईन किया जो कारोबार के मामले में ज़रा सख्त थी। ठीक है बेटा, पर काम से ज़्यादा अपनी बीवी पर ध्यान देना, इसके लिए जा रहे हो, काम के लिए नहीं। उसे खुश रखना हमारी जान है इसमें, दादी ने उसकी तरफ देखते कहा। बेफिक्र रहे, मेरी भी जान है इसमें। इसकी बात सुनकर सरमीने के हलक में तोस फंसते रहे। उसने घूरने के लिए हाजिर की तरफ निगाह उठाई कि शायद वो उसका मजाक उड़ाने के लिए कह रहा हो, लेकिन जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो वहाँ संजीदगी थी, शरारत नहीं। एक पल के लिए दिल में किसी एहसास ने जन्म लिया और वह धड़कते दिल के साथ वापस नाश्ता करने लगा। वो दोनों पेरिस पहुंच गए थे। ऊंची इमारत के आखिरी फ्लोर पर वो बालकनी में खड़ी नीचे का नज़ारा देख रही थी। एक अलग सा सुकून था। वो जब से यहाँ आई थी उसने हाजिर से कोई बात नहीं की थी। कुछ देर बाद दरवाजे की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी। वो वेटर के साथ खाना लिए कमरे में दाखिल हुआ। मुँह हाथ धो के आ जाओ, तुम्हारी पसंद का डिनर है, वो नरमी से बोला। सरमी ने खामोशी से वॉशरूम में गई और मुंह हाथ धोकर वापस आ गई थी। हाजिर खानजादा ने छोटी टेबल दरमियान में रखी और उस पर खाना सजाने लगा। सरमी ने खामोशी से खाना खाने लगी। खाना वाकई बहुत मज़ेदार था। क्या प्लान है अब, वो जमीने से पूछने लगा। मुझे क्या पता, तुम लेकर आए हो, तुम ही डिसाइड करो। वैसे भी तुम तो यहाँ 1000 बार आ चुके हो और मैं बेचारी पहली दफ़ा आई हूँ, मुझे तो सही से पेरिस का नाम भी लेना नहीं आता। मैं तो पेरिस को पैकेज कहती हूँ, सरमीना ने मुंह बना कर कहा। हाजिर खानजादा ने सर झटका। मैडम, तुम्हारा मूड कभी अच्छा भी होता है या नहीं, या बस मुझे देखते ही खराब हो जाता है? मैं यहाँ तुम्हें खुश करने के लिए लाया हूँ, वो नरमी से बोला। मैं तुम्हारे साथ खुश होंगी, ये बात तुम भूल जाओ, उसने तलखी से कहा। हाजिर एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसने खाना वहीं छोड़ा और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो उसके जाने के बाद मुंह बनाकर खाना नोश फरमाने लगी। खाना खाते ही वो बेड पर सोने के लिए लेट गई। थकन से उसकी हालत खराब हो रही थी। जब भी सोते ही नींद की हसीन वादियों में खो गई। कुछ देर बाद अपने ऊपर कोई बोझ
महसूस करके वो नींद से वापस लौटी तो देखा वो उसे खुद में मीच कर लेटा हुआ था। जरमीने ने गुस्से से उसे दूर धकेला। ये क्या हरकत है? वो घुराई। आवाज कम रखकर बात करो, हम घर में नहीं होटल में हैं। अपनी इज्जत का नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। 4 लोग जानते हैं मुझे, तुम्हारी वजह से पता नहीं क्या सोचेंगे। हासिक को एकदम गुस्सा आ गया। अपनी इज्जत का इतना ख्याल है तो मुझसे दूर रहो, वरना 2 मिनट में तुम्हारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दूंगी। सरमीने ने चुटकी बजाई और उसे बावर करवाया। वेरी गुड, बहुत अच्छे मैनर्स है तुम्हारे। शौहर के साथ कैसे बात करते हैं, कोई तुमसे सीखे। बहुत फर्माबरदार बीवी साबित हो रही हो तुम। हाजिर खानजादा दांत पीस कर बोला, मैं यहाँ अपने माँ बाप और दादी की वजह से आई हूँ, इसलिए मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं। मेहरबानी करके मेरे मुंह मत लगो, मैं बहुत बदतमीज लड़की हूँ। जमीने ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। यार जमीने, क्या हो गया यार, तुम क्यों इतना रूड हो रही हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। और तुम्हें हक किया था, मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तो क्यों मेरे और अपने बीच के फासले बना रही हो? वो अब नर्म पड़ गया था, नहीं चाहता था कि उसका दिल दुखाए। उसे हनीमून पर इसलिए थोड़ी ना लाया था। ये फैसला तुमने खुद बनाया है, और अभी नहीं बल्कि बहुत पहले बनाया था। तुमने हमेशा मुझे जलील किया, यूं ट्रीट किया जैसे मैं कोई बेकार हूँ। माना कि तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटी हो, लेकिन इज्जत नफ्स में इतनी ही रखती हूँ जितनी तुम रखते हो। तुमने भरी महफिल तक मुझे जलील किया है, मैं वो सब नहीं भूल सकती। शर्मीने की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरान था कि अचानक से शर्मीने को क्या हो गया। घर पर वो इतनी रूड तो नहीं थी। उसने खुशी खुशी पैकिंग की थी। वो वाकई पेरिस घूमना चाहती थी। हाजिर ने भले उसको हमेशा रोक में रखा था, लेकिन कभी नजरों से दूर नहीं किया। वो उससे मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाया क्योंकि वो अपनी अना में रहता था, लेकिन कभी उसने जरमीने की मोहब्बत में अपनी अना को बुलंद नहीं किया था। जरमीने के साथ कुछ हुआ था जो वह हाजिर खानजादा से छुपा रही थी, वरना वो इतनी रूड नहीं थी। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ आज? वो सोचने लगा। एकदम याद आया, जरमीने को एयरपोर्ट पर कुछ दोस्त मिले थे। इसके बाद ही जरमीने का मूड ऑफ हो गया था। क्या उसके दोस्तों ने कुछ कहा था? फिलहाल इससे बात करनी बेकार थी। सुबह तक इसका मूड अगर ठीक हो जाता तो उससे खुद पूछ लेगा। ये सोचकर वो खामोशी से कमरे से निकल गया। जबकि उसके कमरे से निकलते ही शर्मीने करवट लेकर लेट गई। आंखों में आज का वो मंजर चलने लगा जहाँ एयरपोर्ट पर उसकी दोस्त उससे मिली थी, और हाजिर के मुतालिक उसे वो खबर मिली थी जिसने उसे अपने शौहर से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। अब उसे समझ में नहीं आया था। अब उसे समझ में आया था कि वो उससे इतना रूट क्यों रहता था, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। उसने घर वालों के कहने पर जमीने से निकाह किया था। इसकी जिंदगी में कोई और थी, और वो थी निशा, उसी सेक्रेटरी जिसके साथ वो मोहब्बत में काफी हद तक आगे बढ़ गया। सुबह वो उठकर फ्रेश होकर निक्सी से तैयार हो गई। कल की निस्बत उसका मूड अब थोड़ा बेहतर था। हाथ से खास ज्यादा कमरे में नहीं था। उसे उसकी परवाह भी नहीं थी, हमेशा की तरह। सरमीना ने कभी उसकी परवाह नहीं की, लेकिन पता नहीं एकदम क्यों वो उसके लिए पजेसिव हो गई। वो किसी से भी अफेयर रखे और उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो आदत थी हाजिर के इस रवैये की। वो कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो तैयार खड़ी, ब्राउन लॉन्ग स्कर्ट पर शर्ट पहने, गले में मफलर लपेटे, बाल कंधे पर फैलाए, तरोताजा। जबकि उसके मुकाबिल में वो रफ हुलिये में था। पूरी रात शायद क्लब में गुजार कर आ रहा था। आंखें शब्बेदारी का सबूत थी। मैं रेडी हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे बाहर ब्रेकफास्ट करना है। उसका लहजा अभी भी सख्त था। उसने गोया हुक्म सुनाया। हाजिर को उस पर गुस्सा तो आया, लेकिन खामोशी से वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा वो रूम में नहीं थी। वो बाहर की तरफ लपका। वो अकेले बाहर कैसे चली गई थी? यहाँ उसे कुछ पता भी नहीं था। पेरिस उसके लिए अजनबी था। वो होटल से बाहर निकला, लेकिन उससे पहले वो बेवकूफ लड़की टहलती हुई इर्द गिर्द के नजारे करती बहुत दूर जा चुकी थी। काफी दूर आके उसे एहसास हुआ कि उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता, और मोबाइल वो होटल में ही छोड़ आई थी। इस वक्त वहाँ लोगों की चहल पहल थी, मगर वो खुद को इस भीड़ में तनहा महसूस कर रही थी। यहाँ हर तरह के लोग थे। समझ नहीं आता था कि किसे मुखातिब करे और किससे मदद मांगे। उसके दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इससे पहले कि वो रोती, उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो चौंक कर मुड़ी तो उसे सामने खड़ा देख जान में जान आई। डर गई? वो उसके चेहरे के उड़े रंग देखकर बोला। डरी मेरी जूती? वो अपना पैर आगे किए एतमाद से बोली। ये भी डर गई है? हाजिर ने उसकी जूती को देख हंस कर कहा। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या जो अकेली होकर डर जाऊंगी? मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। गोया खुद को तसल्ली दे रही थी। अभी मैं नहीं आता तो पता चल जाता मैडम, वो सर झटक कर बोला। मैं वापस होटल आने वाली थी, मुझे रास्ता याद है, मेरी याददाश्त बहुत तेज है। वो सटपटा के बोली। हाजिर आगे चलने लगा तो उसके पीछे लपकी। थोड़ा दूर जाके वो रुक गया। सामने 2 गलियां थी। मैं भूल गया हमें कौन सी गली में जाना है, मगर तुम्हें तो याद है ना? तुम बताओ हम कहाँ से आए थे? वो खड़े हो गए, उसकी तरफ देखता हुआ बोला। शर्मीने के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैं वो ये वाली गली, वो तुक्का लगा के बोली तो हाजिर के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। फिर वो दूसरी गली की तरफ चल दिया। जरमीने ने अपनी बताई हुई गली की तरफ देखा और फिर मुंह बना के उसके पीछे दूसरी गली में चली गई। एक पल लगा था उसे समझने में कि वो उसके साथ गेम कर रहा है। मुझे पता था तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो। तुम पता लगाना चाह रहे थे कि मुझे याद है या नहीं, ताकि मुझे शर्मिंदा कर सको। इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें गलत गली बताई। मुझे पता था हमें यहाँ आना है। वो उसके पीछे हाथी बात बनाने लगी। हाजिर के लबों का किनारा धीरे से फैला, फिर उसने टर्न ले लिया।
ज़रमीना हैरान रह गई। वो वापस पलटा और अब उसी गली की तरफ चल दिया जिस पर ज़रमीना ने इशारा किया था। चालबाज इंसान! उसकी ये हरकत देख ज़रमीना ने दांत पीस लिए। वो उसे घुमा रहा था, यानी ज़रमीना ने पहले ठीक बताया था, मगर उसे अंदाजा था कि ज़रमीना ये कहेगी, तभी गलत गली में ले आया। उफ! वो ज़रमीने को इससे बेहतर तरीके से जानता था। इस बार ज़रमीना वाकई शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन अपनी शर्मिंदगी को दूर फेंक भाग कर उसका रास्ता रोका और उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या साबित करना चाह रहे हो कि मुझे रास्ता नहीं आता? मैं बच्ची हूँ, तुमसे दूर हुई तो खो जाऊंगी, गुम हो जाऊंगी। मैं पागल हूँ क्या? अपने आप को इस गलतफहमी से निकाल लो मिस्टर हाजिर कि मैं तुम्हारी मोहताज हूँ। वो पैर पटक कर कहती सामने बने पड़े से कैफे की तरफ चलती। पीछे वो उसकी बातें सुनकर सर झटक गया। वो कैफे से बाहर आए तो इस सिंगर सड़क पर खड़ा, गिटार हाथ में लिए गाना गा रहा था। ज़रमीना उसे देख कर रुक गई। वो कोई इंग्लिश सॉन्ग गा रहा था, कोई मोहब्बत भरा इंग्लिश सॉन्ग। इसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि हाजिर भी सुनता रहा। इस गाने के बोल इन दोनों को दिल में उतरते हुए मोहब्बत क्या होती है वो दोनों भी आज कल महसूस कर रहे थे। एफिल टावर की सुनहरी रोशनी दूर तक फैली हुई थी। सियाहों का शोर उरूज पर था। लोग खामोश से सेल्फियां ले रहे थे। इनकी खिलखिलाहटें गूंज रही थी। वो दोनों खामोशी से चल रहे थे जब हाजिर ने महसूस किया ज़मीनी की रफ्तार में सुस्ती आ गई थी। उसने मुड़कर उसे देखा। वो लोगों को देखती सुस्त चाल चल रही थी। मेरे साथ रहो, हाजिक ने उसे जताया। मैं क्या बच्ची हूँ जो तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलूं? वो गुस्से से घुराई। आस पास चलते लोगों ने चौंक कर उसे देखा। उसका ये रवैया हाजिक के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने सर झटका और दांत पीस कर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो अकेला चल रहा था। पीछे मुड़कर तो देखना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसकी फिक्र थी। तभी मुड़कर देखा, वो पीछे नहीं थी। उसे लगा शायद वो उसे जताना चाह रही हो कि वो उसे दूर होके गुम नहीं होगी। जब भी ड्रामे कर रही हो। ज़रमीना, मुझे पता है तुम छुपी हुई हो। वो वहीं खड़ा जोर से बोला, लेकिन वो नहीं आई। 1 मिनट, 2 मिनट और फिर 10 मिनट गुजर गए। हाजिर खानजादा एक देर निगाह दौड़ाता उसका इंतजार करने लगा। मगर वो वहां होती तो आती ना। वो हर आने जाने वाले से उसका पूछने लगा, कैफे, गलियां, शॉप्स। वो हर जगह छानने लगा। और वो बेवकूफ लड़की जो इर्द गिर्द देखकर चल रही थी, हाजिर के बजाय किसी और मर्द को हाजिर समझकर उसके पीछे चलती, क्योंकि इस मर्द ने भी हाजिर के जैसी हुडी पहनी हुई थी। वो मर्द कैफे के पास मुड़ा तो जमीने ने उसका चेहरा देखा और फिर वो हिल गई कि हाजिर नहीं था। उसने इर्द गिर्द देखा। ये पता नहीं कौन सी जगह थी। वो तो कब से उस आदमी के पीछे चल रही थी, यानी वो अब बहुत दूर आ गई थी। सरमीने ने इस आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो न जाने कौन सी जबान बोल रहा था। उसे समझ ना आई। वो वहां से वापस जाने का रास्ता ढूंढने लगी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए। उसने एक राह चलती लड़की से एफिल टावर का पूछा। इस लड़की ने एक तरफ इशारा किया तो वो इस तरफ चल दी। रात हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था। खौफ ने उसके कदम जकड़ लिए थे और उससे आगे नहीं जा सकी। वापस कैफे में आ गई। यहाँ कुछ रौनक थी। जैसे पहले ढूंढा था वैसे ढूंढ लेगा। वो मुझे यहाँ लेकर आया था। मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ। अगर नहीं मिली तो मेरे घर वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। वो जैसे खुद को दिलासे देने लगी। उसको वहां बैठे 1 घंटा गुजर गया। अब उसे रोना आ रहा था। वो रोने लगी। रो रो कर आंखें सूज गईं। वो गलियां छानता पागलों की तरह उसे ढूंढता है कैफे की तरफ आया। सरबीनी की नजर उस पर पड़ी, मगर वो उसको नहीं देख रहा था, क्योंकि वो कैफे के अंदर थी। हाजिक वहां से निकलता इससे पहले वो भागती हुई उसके पास आई और भागकर उसे गले लग गई। हाजिक ने उसे खुद में भींच लिया। आज वो उसकी जान निकाल गई थी। अगर उसे कुछ हो जाता, ये तसव्वुर भी उसकी जान निकालने के लिए काफी था। मैंने कहा भी था ना मेरे साथ चलो। वो उसे खुद से दूर करता चलाया। मैं तुम्हारे हुक्म के गुलाम नहीं हूँ। वो भी रोना धोना भूल कर गुस्से से बोली। हुक्म की गुलाम नहीं हो। खो गई थी तो मेरी जान हलक में आ गई थी। वो दोबारा चीखा। किसने कहा मैं खो गई थी? वो आंखें पटपटा के मासूम लगती बोली। अच्छा, सैर पर निकली थी तो बता ही देती। मैं ख्वारों की तरह तुम्हें ढूंढता नहीं। जानती हूँ कहाँ कहाँ नहीं गया। पिछले 1 घंटे से भाग रहा हूँ। वो आंखों में गुस्सा लिए बोला। किसने कहा ख्वारों ने को? वो ढीठ बनकर बोली। आइंदा नहीं होगा, फिर चाहे तुम पाकिस्तान में खो या पेरिस में। आई डोंट केयर। वो उसकी ढिठाई देखकर जल भुन गया। वो ढीठ लड़की उसका शुक्र अदा करने के बजाय उल्टा उसको इल्जाम दे रही थी। ओके, थैंक यू, मगर मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। वो यूं ही ढिठाई से बोली। सरमीने, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। वो एकदम ही टूट कर बोला। कंधे झुक गए। सरमीने का दिल जैसे जोर से धड़का। मुझे पता था तुम आओगे, वो नरमी से बोली। उसके लहजे में छुपा मान देख वो धीरे से मुस्कुरा दिया, फिर उसका हाथ थाम कर होटल की तरफ बढ़ गया। वो उसे होटल के कमरे में छोड़कर खूब तैयार होता परफ्यूम छिड़क कर बाहर जाने लगा। कहाँ जा रहे हो? वो बेसाख्ता पूछ बैठी। मेरी सेक्रेटरी भी इसी होटल में ठहरी हुई है। कुछ काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, इससे मिलने देर हो जाएगी। वो नॉर्मल अंदाज में बोला, लेकिन नहीं जानता था कि सरमीने पर यह बात पिछली बनकर गिरेगी, क्योंकि जमीने को उसके और निशा के बारे में सब बता दिया गया था। ओह, तो मैं यही बोलूँ, कल पूरी रात कहाँ गायब रहे थे? तुम्हारी माशूका भी इसी होटल में है। साथ लाए हो उसे रंगरलियां मनाने के लिए? वो गुस्से से चिल्लाई। उसकी बात सुनकर हाजिर खानजादा चौंक गया। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। वो गुस्से से धाड़ा। क्यों, सच बर्दाश्त नहीं हो रहा? चंद दिन भी इससे दूर नहीं रह पाए जो यहाँ भी ले आए इसे? जाओ उसके पास। मुझसे शादी क्यों की? उससे ही कर लेते ना। वो दिलेरी का मुजाहरा करती चीख रही थी। हाजिर खानजादा आगे बढ़ा और गुस्से से उसका मुंह दबोचा।
बस अब एक लफ्ज़ और नहीं, वरना यही जान ले लूँगा तुम्हारी। तुम्हें तो मैं आके बताता हूँ, अभी मीटिंग ज़रूरी है। वो जबड़े खींचकर अपना कोट पहनता बाहर निकलने लगा। हाँ, जाओ, उसके पास वापस आओगे तो मैं नहीं मिलूँगी, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगी, चली जाऊँगी यहाँ से। वो उसको ज़्यादा देखकर नम लहजे में यूँ बोली, एज़ यू विश। वो सफाकिया से कहता वहाँ से वॉकआउट कर गया। उसके जाते ही ज़मीना ने कोट पहना और फिर उसके पीछे होटल से निकल गई। हल्की बारिश हो रही थी, धुंध ने पूरे पेरिस को अपनी लपेट में ले लिया हो। वो धीरे-धीरे कदम बढ़ाती अंधेरे से गलियों में चलने लगी। अब पता नहीं क्यों उसे इन गलियों से डर लग रहा था, क्योंकि उसका दिल टूट गया था। उसका शौहर अपनी महबूबा से मिलने गया था। वो डंके की चोट पर उसे बताए बगैर वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर जाती। वो मोहब्बत करती थी हाजिर खानज़ादा से, उसकी तरह वो भी कभी इज़हार नहीं कर पाई थी। लेकिन अब ये मोहब्बत उसे दर्द दे रही थी। वो कोट की जेबों में हाथ अड़से गुमसुम सी सड़क पर चल रही थी। उसे वो दिन याद आया जब उसका निकाह नहीं हुआ था। मैट्रिक के पेपर स्टार्ट होने वाले थे और उनके ख़ानदान में शादी थी। वो भी वहाँ चली गई थी और भरी महफिल में अपनी सहेलियों के साथ गाने गा रही थी। इसी वक्त वो भी वहाँ आया। वो सबका पसंदीदा था। सब उसे अपनी तकरीबात में ख़ास तौर पर बुलाते थे। ख़ानदान की लड़कियाँ उस पर मरती थीं। वो मुस्कुराता हुआ अंदर लिविंग रूम में आया, लेकिन वहाँ ज़रमीने को बैठा देख उसके तासुरात बिगड़ गए। 2 दिन बाद तुम्हारा पेपर है और तुम यहाँ वक्त बर्बाद कर रही हो, शेम ऑन यू। हाजिक ने भरी महफिल में कहते उसे शर्मिंदा कर दिया। सब हैरत से उसे देखने लगे। हाजिक खानजादा ने सबकी परवाह किए बगैर उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और घर से बाहर लाके गाड़ी में बिठा दिया। वो कुछ नहीं बोल पाई। वो उसे डरती थी, लेकिन इससे बढ़कर वो उसे पसंद करती थी। जब भी उसके सामने कुछ नहीं बोलती, लेकिन अपनी सख्ती से हाजिक खानजादा ने उसके दिल में अपने लिए दूरी पैदा कर दी थी। इस दिन वो घर आके बहुत रोई थी। उन्हीं सोचों में गुम उसने सर उठा के देखा तो वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, बारिश उसे भिगा रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। जहन में फिर एक मंजर उभरने लगा, उसका निकाह हाजिर खानजाद के साथ हो रहा था। वो बहुत खुश थी। वो जो सब लड़कियों का क्रश था उसे मिल रहा था। उसे लगा था हाजिर का बर्ताव अब उसके साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो मजीद सख्त हो गया। निकाह के बाद उसे सोफे पर बिठा दिया गया था। सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो भी इंतजार कर रही थी कि कब वो आए और उसका घूंघट उठाए, लेकिन निकाह के फौरन बाद बाहर चला गया था। रात तक वो इंतजार करती रही। फिर हाजिक आधी रात को घर आया तो वो उसके कमरे में चली गई। उसे इस वक्त कमरे में देखकर उसने ज़मीने को खूब जलील किया और कमरे से निकाल दिया। वो टूटा दिल लिए वापस अपने कमरे में आ गई थी। बारिश अभी तेज हो रही थी। ज़मीने बस स्टॉप पर रखे बेंच पर बैठ गई। बेंच के ऊपर छतरा बना हुआ था। पानी अब उसकी तरफ नहीं आ रहा था। सामने सड़क पर बारिश का मंजर यूं था जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ये मंजर देख उसे वो रात याद आई जब वो टेरिस पर बाहर बारिश में नहा रही थी और हाजिर खानजादा उसके पीछे टेरिस पर आया। उसने ज़मीना पर गुस्सा किया कि वो टेरिस से हटकर लॉन में जाके ये बचकाना हरकतें करे। इस खूबसूरत मौसम में भी उसका सर्द रवैया देख वो उदास होकर नीचे जाने लगी। जब उसका पैर स्लिप हुआ, वो हाजिर की बाहों में समा गई। वो कितनी ही देर उसके सीने से लगी रही, कितनी देर उसके चेहरे को देखती रही। उसका चेहरा प्यारा लग रहा था। बालों से पानी टपक कर चेहरे पर गिर रहा था। पलकें भी नम थी, गालों पर पानी की चंद कतरे थी। बेवकूफ़ लड़की, हाथ से गुस्से से कुराया तो वो होश में आती नीचे चली गई। ऐसे कितने ही मंजर थे जिसमें उसका दिल टूटा था। और फिर उसने इस मर्द की तरफ तरफ से अपना दिल मजबूत कर लिया। वो उससे बात करना छोड़ चुकी थी। दूसरी तरफ हाजिक अपनी मीटिंग में जा रहा था जब उसे होटल से कॉल आई। सर, आपकी वाइफ होटल से निकली है। मैनेजर ने उसे इत्तला दी। हाजिक ने पहले ही उसे ताकीद की थी कि ज़मीने बाहर जाए तो उसे फौरन मुतल्ला कर दिया जाए। मैनेजर की बात सुनकर वो सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से निकला। वो लड़की इस कदर जिद्दी थी, हाजिक सोच नहीं सकता था। 2 बार गुम होने के बावजूद वो अकेले बाहर निकल गई। हाजिक उसे पागलों दीवानों की तरह ढूंढने लगा। काफी देर तक ज़मीने तन्हा बस स्टैंड पर बैठी रही, फिर वापस होटल की तरफ आ गई। हाजिक जो उसे ढूंढने में नाकाम वापस होटल की तरफ आया था, उसे देखकर भागकर उसकी तरफ आया। मुझे लगा तुम दोबारा खो गई। उसका सांस फूला हुआ था। खोने ही गई थी, मगर इस बार रास्ता नहीं भूला, याद रहा। वो रूखे मन से बोली। मुझसे नाराज होकर खुद को नुकसान पहुंचाओगी? वो फिक्रमंदी से बोला। दूसरे मेरा इतना नुकसान कर देते हैं, मुझे खुद को जहमत नहीं उठानी पड़ती। उसका लहजा तल्ख था। बस ज़रमीने, मैंने फैसला कर लिया है। हम कल सुबह वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हें यहाँ घुमाने लाया था, मगर तुम तो तमाशा लगाने में लग गई हो। हाजिक सट मोहरी से बोला। मुझे भी अब यहाँ ठहरने का शौक नहीं। कभी ये जगह मेरे लिए मोहब्बत थी, मगर तुम्हारी वजह से नफरत में बदल गई। ज़मीने ने हलक में आंसू उतारते कहा और तेजी से होटल में दाखिल हो गई। कमरे में आके वो बालकनी में जाके खड़ी हो गई। सर्दी से उसका बदन कांप रहा था। कपड़े चेंज करो, बीमार हो जाओगी। पीछे से हाजिक ने आवाज़ लगाई। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो जोर से चिल्लाई। हाजिक खामोश हो गया। कुछ देर गुजरने के बाद वो बालकनी में बैठ गई। उसका बदन कांप रहा था। वो बेहोश हो गई। हाजिक फौरन भाग कर आया, उसे गोद में उठाए बेड तक लाया। वो बर्फ की तरह हो रही थी। वो उसे अपने हिसार में लिए उसके हाथ पैर मसलने लगा। शर्मीने को अब होश आने लगा था। वो उसके सीने से चिपक गई थी। उसको खुद से लगाए हाजिर खानज़ादा जज्बात में बहता चला गया। ज़रमीने ने भी कोई एहतजाज नहीं किया, खुद को खामोशी से उसके हवाले कर दिया और आंखें मूंद ली। वो गुस्से से उसे घूर रही थी जो सोफे पर बैठा था। थोड़ी देर बाद इन लोगों की फ्लाइट थी। क्यों घूर रही हो? तुमने खुद कहा था, खुद मेरे सीने से लगी थी। हाजिर खानज़ादा ये इसको 10वीं बार बोल रहा था, लेकिन वो उसे ऐसे ही घूरे जा रही थी क्योंकि हालांकि उसे याद था
कि उसने खुद को उसके हवाले किया था। वो इस बात पर गुस्सा भी नहीं थी। वो तो इस बात पर गुस्सा थी कि वो उसे यहाँ लाके अपनी महबूबा से मिलने गया था। उसकी इतनी जरूरत थी कि ज़मीने को धोखा दे रहा था, वो भी ढिठाई से। वो खामोश रही, कुछ न बोली। थोड़ी देर बाद वो लोग पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। फ्लाइट के दौरान भी किसी ने कोई बात न की। घर आने के बाद ज़मीने ने किसी से बात नहीं की और मुंह बना के कमरे में चली गई। वो सोच चुकी थी कि उसे क्या करना है। उसे हाजी का असल चेहरा सबको दिखाना था, इसलिए उसने कमरे में आके हाजी के ऑफिस कॉल करके उसकी सेक्रेटरी निशा का नंबर मांगा। थोड़ी देर में उसे नंबर मिल चुका था। वो निशा को मैसेज करने लगी। जब उसकी दोस्त जो उसे एयरपोर्ट पर मिली थी उसका मैसेज देखा। वो सरमीने की शादी की तस्वीर मांग रही थी, क्योंकि सरमीने की शादी के वक्त वो अपने मामू के घर इस्लामाबाद गई हुई थी। सरमीने ने गायब दिमागे से उसे तस्वीर सेंड की और निशा के नंबर पर टेक्स्ट किया, हाजिक आपका कौन है? अगली तरफ से मैसेज फौरन देख लिया गया था। मेरा शौहर है, लेकिन आप कौन हैं और क्यों पूछ रही हैं? निशा ने रिप्लाई दिया, जबकि मैसेज पढ़कर सरमीने को अपने सर पर छत गिरती महसूस हुई। क्या उसने तुमसे शादी कर ली? उसे नम आंखों से मैसेज भेजा, ऑफ कोर्स, लेकिन आप कौन? फिर से रिप्लाई आया, मैं उसकी पहली या दूसरी बीवी हूँ। वैसे उसने तुमसे शादी कब की? सरमीने ने लरसते हाथों से मैसेज टाइप किया। अगली तरफ भी यही सिचुएशन थी। निशा की आंखें ही मैसेज देखकर धुंधला गई थी। हासिक ने उसे धोखा दिया था। हमारी शादी 2 महीने पहले हुई है। अगली तरफ से मैसेज आया। सरमीने के लबों पर एक दर्द भरी मुस्कान उभरी। मैं इसकी पहली बीवी हूँ। 2 साल पहले मेरा इससे निकाह हुआ था। शायद उसने तुम्हें नहीं बताया हो। सरमीने ने मैसेज किया और चेहरा हाथों में छुपाए रोने लगी। हाजिक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये मैसेज देखकर निशा ने घर के बर्तन गुस्से से तोड़ने शुरू कर दिए। घर वालों से मिलकर हाजिक कमरे में आया तो देखा वो रो रही थी। हाजिक की आहट पाके उसने सर उठाया और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। तुम्हारी असलियत आ गई मेरे सामने, सरमीने काटदार लहजे में बोली। कौन सी असलियत? हाजिक ने नासमझी से पूछा। तुम्हारी दूसरी शादी की। उसका लहजा नम था। हाजिक के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी शादी? वो हैरत से पूछने लगा। हाँ, मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे और निशा के बारे में। तुम लोगों ने शादी कर ली और तुम मेरा बहाना लेकर उसे हनीमून पर पेरिस ले गए थे। सरमीने ने नफरत से उसे देखा। ऐसा कुछ नहीं है। हाजिक ने उसे सफाई देनी चाहिए जब सरमीने ने खोखार नजरों से उसे देखा। अब मुझे सब पता चल गया है। अब तुम झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी असलियत ये है। क्यों दिया मुझे धोखा? ये बताओ, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? सरमीने आगे बढ़कर हाजिक खानजादा का गिरेबान थामती बोली। मेरी असलियत देखना चाहती हो ना? चलो। हाजिक ने उसका हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ उसे कमरे से बाहर ले गया। दरवाजे के बाहर खड़े उसने 2-3 बार बेल दबाई, लेकिन कोई ना आया। उसके पीछे ज़मीनें खामोशी से खड़ी थी। पता नहीं वो उसे कहाँ लाया था। अगले पल दरवाज़ा खोल दिया गया था। सामने निशा खड़ी थी। उसे देख हैरान हुई। अरे हाजिक, तुम यहाँ? निशा ने हैरत से कहा। हाजिक ने उसे देखा। उसके गाल पर आंसुओं के निशान थे। वो रोई हुई थी, आंखें सुर्ख थी। निशा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाजिक ने उससे इजाज़त ली तो ज़मीने ने चौंक कर निशा को देखा। वो हाजिक को देख इतनी पुरसुकून क्यों खड़ी हुई थी? हाजिक घर में दाखिल हुआ तो उसके साथ ज़मीने भी अंदर आ गई। अंदर का माहौल कुछ अलग था। घर का हर डेकोरेशन पीस, गुलदस्ता, कांच की चीजें, बर्तन टूटा हुआ फर्श पर पड़ा था। सामने सोफे पर एक आदमी सर पकड़े बैठा था। ये क्या है निशा? हाजिक ने हैरानगी से पूछा। क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। इस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया। ये पहले से शादीशुदा था, इसने मुझे बताया भी नहीं। ये धोखेबाज है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके घर की हर चीज तोड़ दूंगी। इसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? निशा ने एक टेबल पर लात मारी। वो टेबल दूर जा गिरी। वो पागलों की तरह रो रही थी। ये क्या है हाजिक? निशा की बात सुनकर सोफे पर बैठे शख्स ने बेचारी से हाजिक खानजादा को देखा, जबकि ज़मीने हैरत से उसे देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। निशा ने खुद कहा था वो हाजिक की बीवी है, लेकिन वो इशारे किसी दूसरे मर्द की तरफ क्यों कर रही थी? एक मिनट निशा, तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बात सुनो मेरी, बैठो यहाँ सुकून से। हाजिक ने निशा को सोफे पर बिठाया। तुम्हें मैसेज मेरी बीवी ने किए थे यार। तुम्हारी तरह उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि मेरा और तुम्हारे शौहर का नाम एक ही है। ये हाजिक बेग है और मैं हाजिक खानजादा। हाजिक की बात सुनकर ज़मीने और निशा ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। क्या? निशा ने बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ, क्योंकि उसे लगा तुम मेरी दोस्त दूसरी बीवी हो और इससे बात करके तुम समझी कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया। हालांकि तुम दोनों को गलतफहमी हुई है। हाजिक ने उसकी उलझन सुलझाई। ज़मीने की अब सारी बात समझ में आई। दिल किया कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। मैंने तो ये सोचा ही नहीं, निशा ने शर्मिंदगी से कहा। तुमने सोचा हो या ना हो, लेकिन इससे मुझे एक बात पता चल गई कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। यार, तुमने मुझे अपनी सफाई के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोलने दिया, बस घर की सारी चीज़ें तोड़ दी। हाजिक बेग ने मुंह बना के कहा। भाई, मेरे यहाँ भी यही सीन है। तुम्हारे यहाँ तो चीज़ें तोड़ी हैं, मेरा तो दिल ही टूट गया। बस मुंह टूटने वाला था, इससे पहले मैं यहाँ आ गया। हाजिक खानजादा ने गहरी आह भरी। मुझे ज़मीने ने मैसेज किया था, लेकिन इसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ? निशा ने सोचकर कहा। ज़मीने कुछ कहती इससे पहले ही उसकी दोस्त की कॉल आ गई। वो कॉल उठा के बाहर की तरफ आई। ज़मीने, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तुम्हारा हाजिक दूसरा है और निशा का हाजिक दूसरा है। मुझे गलतफहमी हो गई। निशा तुम्हारे शौहर हाजिक के ऑफिस में जॉब करती है, तो मुझे लगा उसने शादी भी उसी से की है। निशा मेरी दूर की कज़न है। मैं उसकी शादी में गई थी जब भी मुझे लगा कि उसका दूल्हा तुम्हारा शौहर हाजिक है, क्योंकि मैंने तुम्हारे शौहर को नहीं देखा था, लेकिन मैंने
निशा के शौहर को देखा था, अब तुम्हारे शौहर को तस्वीर में देखा है, वो हाजिक नहीं है। इसकी दोस्त फिक्रमंदी से बताने लगी। लेकिन तुमने तो कहा था कि हाजिक और निशा का अफेयर चल रहा है, अब तुम कह रही हो कि तुमने इन लोगों की शादी अटेंड की थी। शर्मीने ने गुस्से से कहा, इस लड़की की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। यार मैंने अफेयर का इसलिए बताया था ताकि तुम्हें कम तकलीफ हो। अगर मैं फौरन तुम्हें इन दोनों की शादी का बता देती तो तुम्हें सदमा लग जाता। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें तकलीफ हो। सॉरी यार, सब मेरी वजह से हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इसकी दोस्त माजरत करने लगी। अब क्या फ़ायदा, अब तो तुमने मुझे शर्मिंदा करा दिया। शर्मीने ने गुस्से से कहकर कॉल काट दी और वापस अंदर आई। आई एम सॉरी निशा, मुझे गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। सॉरी प्लीज़ सॉरी। शर्मीने ने अंदर आके सर झुकाए निशा से माफ़ी मांगी। शर्मीने बहन, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो मेरे घर का सामान बच जाता। निशा के शौहर ने तासुब से कहा, तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है मेरी वजह से, इसलिए तुम्हारे घर का सारा सामान मैं दोबारा खरीद कर दूंगा और निशा की सैलरी भी बढ़ा दूंगा। इसके अलावा मैं तुम लोगों की शादी की खुशी में निशा को 1 महीने की छुट्टी दे रहा हूँ। इंजॉय करो और प्लीज़ सॉरी यार। हाजिक ने इन लोगों को देख हाथ हिलाया और दोनों खुश हो गए। हाजिक बाहर निकला तो ज़मीने भी उसके पीछे बाहर आई। सारे रास्ते दोनों के दरमियान खामोशी रही। ज़मीने शर्मिंदा थी, एक शक की बदौलत उसने अपना हनीमून तक खराब कर दिया। इसकी वजह से निशा का रिश्ता खतरे में पड़ गया था और हाजिक उसका दिल टूट गया। कहाँ चले गए थे तुम लोग? वो लोग घर आए तो दादी ने फिक्रमंदी से पूछा। कहीं नहीं, बस किसी को असलियत दिखानी थी, वो संजीदगी से कहता कमरे में जाने लगा। ज़मीने ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। खाना तैयार है बेटा, खा के जाओ, दादी ने उसे आवाज़ दी। मुझे भूख नहीं है, वो सड़पन से कहता कमरे में चला गया, जबकि ज़मीने सोचने लगी कि अब क्या करे। कुछ देर बाद कमरे में आई तो देखा वो बेड पर लेटा था। ज़मीने कांपने का नाटक करने लगी। उफ, बहुत ठंड है, मेरा जिस्म कांप रहा है, मैं क्या करूं? वो काफ़ी देर वही खड़ी हिलती रही, लेकिन जब हाजिक ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो बेड पर लेट गई तो पाने का नाटक करने लगी। हल्के ब्लू हल्के हल्के हिलो, बेड हिल रहा है, हाजिक ने लापरवाही से कहा। तो ज़मीने ने मुंह बनाया। वो तो पेरिस के होटल वाला सीन क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन हाजिर तो उसे देख भी नहीं रहा था। कुछ देर वो यूं ही खामोश बैठी रही, फिर बालकनी में चली गई। बाहर बारिश हो रही थी, वो रेलिंग पर खड़ी भीगने लगी। कुछ देर में उसे वाकई ठंड चढ़ने लगी, लेकिन वो भीड़ बनी वहीं खड़ी रही। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो वो बड़ी मुश्किल से कमरे में आई। उसके दांत बच रहे थे, सर्दी की बारिश थी, उसे ठंड लग गई थी। वो कमरे में आके अलमारी से कपड़े निकालने लगी, मगर उसका जिस्म काम नहीं कर रहा था। वो वहीं गिर गई। उसका गीला बदन देख हाजिर खानज़ादा फौरन भागता हुआ उसके पास गया, उसे बेड पर लाके बिठाया और हीटर ऑन करके अलमारी से उसे कपड़े निकाल कर दिए। तुम्हारे लिए काफ़ी कॉफ़ी बनवाता हूँ, कपड़े चेंज कर लो। वो कमरे से निकलने लगा। मुझे उस दिन की तरह ठीक होना है, वो बेसाख्ता बोली। शक तो तुम फिर भी मुझ पर करोगी ज़मीने, हाजिर गहरा सांस लेते हुए बोला। माफ़ नहीं कर सकते मुझे? वो मोहब्बत से पूछने लगी। हीटर से कमरा गर्म हो गया था, ज़मीनें अब थोड़ी बेहतर हो गई थी। नहीं कर सकता, वो मुंह फेर कर बोला। आपने होटल में हीटर क्यों नहीं चलाया था? वो उसको तंग करने के लिए बोली। याद नहीं रहा था मुझे, वो बात बनाने लगा। मैं जानती हूँ आपकी याददाश्त कितनी कमज़ोर है, ज़मीने ने हंसते हुए कहा। प्लीज़ माफ़ कर देना, वो मिन्नत करने लगी। तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी है तुम जानती हो, और अब तुम इतनी आसानी से माफ़ी मांग रही हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तो मुझे माफ़ कर दो, हाजिर का गुस्से से बोला। मैं तो आपकी हर सख्ती माफ़ कर देती हूँ। आपने भी तो मेरा बहुत दिल तोड़ा है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, अब खुद पर आई तो तकलीफ हो गई। आपने कभी सोचा कि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ? मुझे भी आपके रवैये से तकलीफ होती है। जब आप सबके सामने मुझे डांटते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, शर्मीने दुख से बोली। उसकी बात सुनकर हाजिक लंबे लंबे दिख भरता कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद मुलाजमा उसे कॉफ़ी देकर चली गई। वो रात भर उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस कमरे में नहीं आया। वो सुबह उठकर अपने कपड़े अलमारी से निकाल रही थी जब एक दराज पर उसकी नज़र पड़ी। उसने दराज खोली तो उसमें एक बहुत खूबसूरत डायरी निकली। ज़रमीने ने वो खोलकर पढ़नी शुरू की। ये हाजिक की डायरी थी। इस पर लिखे अल्फाज देख ज़रमीने की आंखें हैरत से फैल गईं। ज़रमीने का 9th मैट्रिक इंटर का रिजल्ट, वो तमाम तारीखें जब हाजिक ने उसको डांटा और ख़ुद को गिल्ट फील किया। वो एक सफ़े पर दश थी। उसकी पसंदीदा चीज़ें एक सफ़े पर लिखी थी, उसकी पसंदीदा जगहें, उसके पसंदीदा खाने, सब उस डायरी पर लिखे थे। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये, सब उनके निकाह से भी कुछ सालों पहले का था। यानी वो पहले से ज़रमीने को पसंद करता था। ज़रमीने के साथ बिताए पल भी उसने डायरी में लिखे हुए थे। वो संजीदा और सख्त दिखने वाला, इतना हसास वो नहीं जानती थी। वो बेवकूफ़ लड़की, तभी उस पर सख्ती करता हूँ ताकि कोई और उसकी मासूमियत का फ़ायदा ना उठाए। एक सफ़े पर लिखा था। ज़मीने ने डायरी बंद कर दी। उसकी आंखें नम थीं। वो डायरी उठाए स्टडी की तरफ बढ़ गई। जानती थी वो वहीं मिलेगा। मुझे आपकी असलियत पता चल गई है, उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। वेल, अब कौन सा नया ड्रामा शुरू करने वाली हो? वो रूखेपन से बोला। मोहब्बत का ड्रामा, वो शरारत से कहती उसके पास आई तो हाजिक की नज़र उसके हाथ में मौजूद डायरी पर पड़ी तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए। आपने हमेशा मुझसे अपनी मोहब्बत छुपाई और मैं आपके बारे में न जाने क्या क्या सोचती रही। जब भी कहते हैं कि प्यार का इजहार कर देना चाहिए।
वो नरमी से उसके करीब आके उसके चेयर पर एक पैर टिकाए, दूसरा नीचे किए उसके चेहरे पर झुककर बोली, इजहार ना भी हो तो सामने वाला समझने वाला होना चाहिए। हाजिक संजीदगी से बोला, सामने वाला बेवकूफ़ हो तो उससे इतनी उम्मीदें नहीं लगाना चाहिए। वो नरमी से बोली, बेवकूफ़ नहीं हो तुम, अच्छी खासी समझदार लड़की हो। वो धीरे से मुस्कुराया। अच्छा, फिर आप क्यों मुझे बेवकूफ़ कहते हैं? वो पूछने लगी। क्योंकि मेरी नज़र में तुम बेवकूफ़ हो। वो सर झटक कर बोला। अच्छा, यानी मसला आपकी आंखों का है? कोई बात नहीं, मैं अपनी सेविंग से आपकी आंखों का इलाज करवा दूंगी। वैसे अब मेरी जायदाद भी आपकी है, कहीं आपने जायदाद के लिए तो मुझसे शादी नहीं की? वो शरारत से बोली, जायदाद का मैं क्या करूंगा जब मैं खुद ही तुम्हारा हो गया? वो बेसाख्ता बोल पड़ा। फिर याद आया उसे नाराज था। हाय, दिल को करार आ गया। वो दिल पर हाथ रखी अदा से बोली, दोबारा बेकरार कर दूं? वो इस्तफसार करने लगा। नहीं, माफ़ कर दें प्लीज़। वो उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, कर दूंगा एक शर्त पर। वो नरमी से बोला तो जमीने ने इस बात में सर हिलाते उसे देखा। मुझसे लड़ोगी तो नहीं? मुझ पर कभी शक नहीं करोगी और हम हनीमून पर दोबारा जाएंगे, लेकिन इस बार तुम मेरा हाथ पकड़कर घूमोगी। वो जल्दी से बोला, बाकी सब तो ठीक है लेकिन लड़ाई वाला नहीं पता। अपन को लड़ाई किए बगैर खाना हजम नहीं होता, इसलिए लड़ाई तो अपन करेगा तुमसे। वो अपने छोटे बाल हवा में उड़ाते हुए बोली, कर लेना लड़ाई, लेकिन प्यार वाली नफरत वाली नहीं। तुम्हारी नफरत नहीं झेल पाऊंगा। अब इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। वो सीधा होके बैठता उसे अपनी गोद में बिठा गया। मंजूर है, वो चहक कर बोली। चलो फिर कमरे में हीटर बंद कर देता हूँ। वो शरारत से बोला तो जरमीने उसकी गोद से उतर कर खड़ी हुई। क्या कहा आपने? वो नासमझी से पूछने लगी। नादान मत बनो, वो शरारत से बोला। सच्ची मोहब्बत? सच्ची? मुझे समझ नहीं आया। वो फिर से पूछने लगी। मेरा कहने का मतलब था कि जो तुम रात में चाह रही थी वो कर देता हूँ। अब समझ में आई? वो ज़ूम आईने अंदाज में कहता उसके पीछे लपका। मैं तो मजाक कर रही थी, वो शरारत से कहती बाहर की तरफ भागी। लेकिन मैंने सीरियस ले लिया। वो उसके पीछे भागा। फिर बोरी की तरह उठा के उसे कंधे पर डाला और कमरे की तरफ बढ़ गया। वो पीछे उसकी कमर पर मुक्के बरसाने लगी, मगर हाजिक ने उसे कमरे में लाकर बेड पर पटक दिया। दादू ये देखें। सरमीने ने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो हाजिक पीछे मुड़ा। इतनी देर में वो फुर्ती दिखाती खुद को वॉशरूम में बंद कर गई। सरमीने, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी शरारत पर वो तब किया। वो वॉशरूम के अंदर से उसे चिढ़ाने लगी और हाजिक के लाख कहने पर भी उसने वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोला तो हाजिक खामोश होकर साइड में खड़ा हो गया। खामोशी देख सरमीने को लगा वो चला गया, इसलिए उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला जब अचानक से वो नमदार हुआ और उसे जबरदस्ती वॉशरूम में लेकर दरवाजा लॉक किया। सरमीने जानती थी अब वो क्या करेगा, इसलिए खुद ही शॉवर के नीचे खड़ी हो गई। हासिफ खानज़ादा उसके पास आया और उसे खुद से लगाए शॉवर खोल दिया। शॉवर के नीचे खड़े वो दोनों भीगने लगे। हासिफ ने सरमीने को जोर से गले लगा के खुद में मींच लिया। सरमीने ने सुकून से आंखें मूंद ली। अब दोनों के दरमियान कोई जिद, कोई नफरत नहीं थी, बस सिर्फ मोहब्बत, और वो भी बेइंतहा मोहब्बत जिसे पाके दोनों बेइंतहा खुश थे। तो कैसी लगी व्यूअर्स आपको आज की स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें और हमें अपनी राय से आगाह करें कि आपको मज़ीद और कौन कौन से टॉपिक्स पे नॉवेल और शॉर्ट स्टोरीज़ चाहिए प्लीज़। और अगर ज़्यादा स्टोरी पसंद आई हो तो हमारी स्टोरी को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।